Hi guys, this is Piyush from Trade with PS. So guys, this is my channel, and you can see all the videos which I'm recording for the Nifty and Bank Nifty analysis. So for nowadays, like videos are not that much regular that I know, but from today onwards, I'll try that videos are regular, and I share all the details with you guys that on what setup I'm going to trade tomorrow. So guys, if you want to know such things and that what setup I'm following today and what are my levels, then this is my Telegram channel link, and you can also get the details in the description of the video. That you'll get the Telegram channel link, and from there you can see what trade I am taking and what is my stop loss and what are my targets. So guys, let's start with the Nifty analysis, and before that I'll request all my subscribers to share this channel with their friends and families who are interested in learning about the market and want to make money out of market. And thank you guys. So let's start with Nifty analysis. So Nifty, we can see that today market is still on this. If you see this trend line, right? Yeah, let me just change this to 30 minutes so it will be more clear. So if you see, the market is taking support on this trend line and moving upwards. So here also you can see took support and upward. Today market, once it broke, but still this 17,900 is acting as support. So market is taking support is at this 17,900, and now it is again back to trend line and it broke 18,000. Now for tomorrow, like if market opens flat and takes support at 18,000, then we have to take a entry, right? Buy a C position in the market and put a stop loss below this swing. It will be like 20 to 25 points, and like take target of at least 1:2. So 25 points SL you have to take, and then if something, then your target should be 18,050. Like market will break this level, and then your ultimate target will be 18,100. So you will get 1:2, more than 1:2. And here, once market breaks this 18,100, then your ultimate target should be 18,200. Market will show you this level by tomorrow itself. So there are high chances that market will do this. Now if we talk about Bank Nifty, then in Bank Nifty also you can see this trend line support, right? Trend line support is there, and market is continuously taking support at 38,200. And today, once this level was broken, right, this 48,420, then market sharply break this 38,500 and touched 38,600. So my initial target was 38,650, but till 600 I have booked my profit today. So what is my setup for tomorrow? So if market opens flat और market इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है 38,600 से लेके 38,425, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट होके 38,425 से अगर सपोर्ट लेता है, then your first target should be 38,600. Market once break 38,600, then your next target should be 38,800, and उसके बाद 39,000 के लेवल मार्केट कल के कल शो कर सकता है. एंड मार्केट 39,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है. इफ वी सी, then 39,000 will act as a resistance, but all these levels can be ये सारे लेवल्स बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे. 38,900 आपको एक अल्टीमेट टारगेट लेके चलना चाहिए. तो मार्केट विल ट्राई टू क्लोज इट अबव 38,950. सो आपको देखना है, अगर मार्केट 38,425 पे ही एक डिप लेके राइज करता है, तो आपको यहीं पे अपना एक एंट्री लेनी है और आपको 50 पॉइंट का एक एसएल लेना है. बिलो दिस स्विंग यू हैव टू कीप योर एसएल. और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आपको ऊपर के ट्रेंड, मैं आपको मेनली आज ऊपर के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी अभी ट्रेंड दिख रहा है वो ऊपर की तरफ ही दिख रहा है. और अगर हम SBI, ICICI बैंक, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक की अगर बात करें, तो ये सारे भी ब्रेकआउट पे ही खड़े हुए हैं अभी. तो अगर मार्केट कल को 38,200 के पास आता है और यहाँ पे आपको मिलता है, देन अगेन मार्केट एक वॉलेटाइल हो जाएगा. और मार्केट अगर 38,425 के नीचे खुलता है, then also market will become volatile.
तो आपको इस ट्रेंड लाइन का फिर सपोर्ट लेना पड़ेगा। बट अगर मार्केट आप मिस कर देते हैं 38,425 की एंट्री, लाइक इट इज़ अ स्पाइक एंड उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया, तो आप 38,600 के ऊपर एक एंट्री कर सकते हैं। 38,600 के ऊपर अगर मार्केट अपना सस्टेन करता है देन 38,800 39,000 के लेवल आपको मिल जाएंगे, और आपका स्टिल आपका एसएल 38,425 के नीचे ही होना चाहिए। एसएल बड़ा होगा बट टारगेट भी बड़े ही होंगे। और अगर मार्केट को आपको पता है रेड लाइन के नीचे 38,200 ये हमेशा मेरा एक सपोर्ट लेवल होता है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो 38,000 एंड 37,800 आई एम नॉट सीइंग दिस टुमारो, एंड सेम इन निफ्टी ऑल्सो आई एम नॉट सीइंग। सो निफ्टी भी अगर कल गैप डाउन खुलती है तो एक वोलाटाइल हो जाएगी इस रेंज के अंदर। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसको इस स्विंग को क्रॉस करता है देन आप एक बाई एंट्री कर लीजिएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 37,960 से, उसके बाद 18,000 को क्रॉस करता है, फिर से आप एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुमारो, एंड इफ यू वांट टू लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी देन टुमारो go for the PSU bank and check for SBI, right? Go for SBI. If I show you this SBI, what SBI is doing, let's just see. SBI ने आज ब्रेकआउट दे दिया है अपने लेवल से, एक कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला SBI के लिए और मार्केट ने एक रैली करी। फिर आज भी मार्केट ने अपने ओपन के ऊपर ही ओपन किया और वहाँ पे इसको टेस्ट करके फिर से एक रैली करी। अब कल भी ये कंटिन्यू हो सकता है यहीं से। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको जो अपना एसएल रखना है वो 478 के आसपास अपना एसएल रख सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट एक यहीं से एक रैली करेगा और आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 1500, 490 एंड 495 के लेवल आपको कल ही मिल जाएंगे। अगर आप आज देखें तो मार्केट ने 13 पॉइंट्स की रैली करी है, तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर इसके 10 पॉइंट्स भी लेते हैं यहाँ से तो आपको 495 और 500 एक राउंड लेवल है, तो मार्केट वहाँ तक अपने आप को ट्राई करेगा क्लोज देने का। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक के अंदर हम देखें तो मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक इनसाइड कैंडल है। अगर मार्केट 719 को ब्रेक करता है तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो 735 का होगा। उसके बीच में इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाला है, तो 735 का आपका टारगेट होता है। तो एक इनसाइड कैंडल है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। कल ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर है। अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर द लेवल ऑफ 750 ICICI बैंक को। कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक ने भी एक राइज करी है, फिर उसके बाद एक ये हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था, फिर आज ये एक इसने कल एक पुल बैक किया था। तो हम कभी भी फर्स्ट पुल बैक पर नहीं बाई करेंगे। अगर हम आज देखें तो मार्केट ने अपने आप को इस स्विंग के पास में ही क्लोज किया, तो अगर कल इसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमको कल एक अच्छे टारगेट 2000 एटलीस्ट मार्केट 2050 को तो टेस्ट करेगा ही कोटक बैंक में। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक भी आप अगर देखो तो उसने भी आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मार्केट कल अगर ओपन होने के साथ 800 को क्रॉस करता है देन उसका अल्टीमेट टारगेट 810 एंड 820 आपको मिलेंगे। HDFC बैंक अगेन ग्रेट, इट इज़ लुकिंग ग्रेट नाउ। आज हमने देखा मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट स्टिल कैंडल ये वीक नहीं है। मार्केट कल अगर इसी का सपोर्ट लेगा 1620 का अपना स्टॉप लॉस रखिए एटलीस्ट, दिस वन, दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस 1615 एंड मार्केट को ऊपर लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो अभी रेजिस्टेंस आपको मार्केट देगा 1640 का, तो 1640 को ब्रेक करने के बाद मार्केट आपको 1618 और 700 के ऊपर आपको क्लोज होते हुए मार्केट दिखेगा कुछ दिनों में। So thank you guys, that's it for tomorrow, and I'll see you guys with a new video tomorrow. Thank you.